आज की बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम लोग माननीय मदन दास जी, जो दीनदयाल शोध संस्थान के संरक्षक थे और एक बड़े विचारक और संगठक थे, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। हाल ही में उनका निधन हुआ। 24 जुलाई को हुआ था। 25 जुलाई को उनका अंतिम क्रिया हुई। तो माननीय मदन दास जी कार्यवाह of the RSS, and he was just like a mentor for the Deen Dayal Research Institute and other like-minded organizations. He passed away on 24th of this July at the age of 81. So we pay our homage to this great man, the great thinker and the organizer. We will remain silent for a minute, and then by giving our homage, we will start this meeting. Om Shanti Shanti Shanti. Namaskar. Today's webinar is third in the series. This is the initiative to propagate a conversation between the like-minded persons and organization to create an understanding of the issues and possibilities of possible solutions that civil society could take lead on. So today's webinar, uh, the subject is climate change, what individual can do. We have four distinguished guests and the speakers. First in the line is Mr. Nick Anthony. He's from UK, but currently based in Ibiza and Phuket and Pokhara. Uh, he had a very good corporate life, but he left all that thing, and he started this civil society in the name of Seek. He was co-founder founder of Seek, a Phuket-based civil society organization that supported the Thai government with writing and implementing the interventions-based sustainability plan pre-SDG period, that is into 2012, with the support of IUCN and WWF. He has advised and implemented plastic mitigation policies across the Indian Ocean, including the Mumbai municipality's drastic waste policy change in 2015. He has advised National Geographic on the Ganges cleanup and was part of UN Tech Lab Mithi River cleanup. He continues his work on risk to reef solutions, currently based in Pokhara, Nepal. He is developing waste reduction and take backs in Himalayas. Nick is on working groups with the OECD localizing SDGs and UNESCO's Education for Sustainable Development. He has been a member of the Paris Peace Forum since inception, connecting for the future. He will speak on risk to speak, that is connectivity, and we know connectivity and pollution go hand in hand. River pollution and air pollutions know no boundaries. We are one blue planet. All is connected. Positive interventions and solutions are available today, but last mile community education and local knowledge is lacking. So I invite Mr. Nick Anthony to speak on risk to reef solutions. Nick, sir, please. Thank you very much for such a kind introduction, and it's a pleasure to be with you this morning. Nick, if you would speak a little louder, your voice is quite low. Okay, very good. Is that better? Much better, thank you. Much better. Great. Yes, so thank you so much for inviting me this morning to say a few words, and it's my really great pleasure to join you all where I am today up in the Annapurnas. I've been here now, this trip in the Annapurnas for the last 2 months, and for the last 12 years of my life, I seem to be following water wherever I go. Of course, we're in a world where water is stressed everywhere and is a critical component of life and of our future. And it's pained me as I've traveled the world looking at particularly plastic solutions that the world continues to dump much of its pollution in its rivers, which of course flows down through the lights of the Yamuna and the Ganges and ends up in the Indian Ocean.
My life in Phuket was quite glorious until it got impacted with large amounts of plastic, and at which point it was a case of, do I fight or do I run? And I'm generally not a runner, so I stayed and decided to fight this plastic pollution. And it was really after 4 or 5 years working with the government, in particularly making it a health issue and working with the health ministries to ensure that plastic policies were amended, changed, introduced. And I found that working with the health ministries around the world is one of the safest ways to ensure that policies remain, even when governments or other sectors within government do change. That type of approach has taken me to around 25 countries in the world, and each place is different. And as you found in Chitrikut, in implementing sustainability plans, that they're very localized skills. However, there is interplay between all of us as humanity, and in creating unity, that those skills can be shared, should be shared. And of course, we're in a future now where technology is making it more possible. So the solution, as Pandit Deen Dayal, founded with the integral humanism movement in the 1960s, is that you have consistently focused on reaching the last man, the anti-Odaya, as your program is called. And the Chitrikut Declaration, I think, is a very strong move to utilizing that experience, to utilizing that great talent pool of information, and to sharing it with the rest of the world. Now, today's topic is climate change and what can individuals do. I'm not going to talk through individual actions per se today, because one of the complexities that I've faced with is we are all individual, and in the basis of that, trying to come up with a standardized program is very difficult. The world is complex. We have commerce, we have business, we have governments, we have religions, we have different languages. We live in different areas and have different geographic uh, uh, elements to where we live, and that's specifically related to water, to the land, to the soil, and to the air. At the same time, you have climate crisis and the need for climate mitigation and the need for climate adaptation. So as the world's temperatures changes, so do our geographic areas, so does the water, so does the land, so does the soil, and so does the air. So it's connected, but it's also a moving tapestry, which means this is a very complex problem to globalize a set of skills. However, the solutions are now at hand. Looking at Chitrikut and thinking across the Indian subcontinent and how your skills and your experience can be leveraged into creating communities like Chitrikut across the world. One of the things that comes to me is that India is, of course, highly connected by this ridge to reef concept. The idea that it starts with the Himalayas and ends with the oceans, and in our case, with the Indian Ocean. As I sit here in the Himalayas, I've just seen dump sites on the edge of these rivers, same as I've seen in Himachal Pradesh, and the same as I've seen in before in Varanasi and Rishikesh. But this creates a source of microplastic and plastic pollution, which is going to be endemic for the next 500 years. So the solutions of cleanups and connecting communities with a common goal of sustainable development is a critical issue. And the positive thing from my perspective is I think we're nearing peak plastic. I'm seeing very encouraging results up here with cleanups in Kathmandu and Pokhara, and generally a much better awareness in the villages. For the first time in my working experience up here in 8 years, villagers now are coming to me asking for solutions and wanting to know how to reduce their plastic, wanting to know what to do with their accumulated waste. So I see a very, very positive amount of momentum for the first time up here in the mountains. When looking at Chitrikut, I would suggest perhaps consider a range of adapted skills for each of the geographic areas in India. So with Chitrikut and its rural solutions, it can be leveraged into an urban solution. It can be leveraged into a mountain solution, where up in the mountains, the waste and the problems of
pollution in particular are they go up, but they don't come down. There's also the potential to create a coastal system, which is the other main geographic area. And I think with those 4 types of geographic programs, you can leverage Chitrikut skills into a very comprehensive program. I'm cognizant of the time this morning, and we have some other speakers. But perhaps I could just close before asking some questions, if there are any questions, that, you know, out of this, what I like to call the fog of life, where people are very engaged now in screens and experiences that are outside of nature, comes the clarity of a community. And in that cohesion, we have the capacity to create peace with nature. And I really applaud Chitrikut and all the work, Vasant, you and your team have been doing over the last 30, 40 years. And I look forward to collaborating with you to help to develop these actions that individuals can do to support a climate change program. थैंक यू सर. निक सर ने जो बताया, मैं हिंदी के वाले लोगों को बताना चाहता हूं कि वो प्लास्टिक रिडक्शन के लिए काम कर रहे हैं. आज प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है अपने पृथ्वी के लिए. समुद्रों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्लास्टिक भरा हुआ है नदियों के किनारे, और जहां ये पोखरा में बैठे हुए हैं हिमालय में, एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है. जो लोग एवरेस्ट पे चढ़ के जाते हैं या किसी भी पीक पे चढ़ के जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा वेस्ट फेंक के आते हैं. तो उस पे अपना काम कर रहे हैं. निक सर ने जो बताया वो कि चित्रकूट मॉडल जो पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन पर केंद्रित है, और जिसका जो बेसिक टेनेंट है वो अंत्योदय, तो उससे वो काफी प्रभावित हैं. और उनका कहना है कि वो दुनिया में कहीं पे भी उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो उपयोगी होगा, तो विश्व में इसको ले जाने की जरूरत है. 25 देशों में वो जाके इस पे काम कर चुके हैं. अपने आप को वो ट्रेवलर यानी बताते हैं एक जगह बैठ नहीं सकते, और अपना जगह जगह जाकर उस पे अपने विषय को रखते हैं. मैं अब ऑडियंस से चाहूंगा कि कुछ लोग कुछ उनसे प्रश्न करना चाहते हो. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम निक्स एंथनी, यू कैन प्लीज प्रोसीड. Anybody from audience? Nick, Vasant here. Vasant. Yeah. So if you could just, very briefly, tell us how, when you were in Phuket and you started that plastic movement, how did you get the community to participate in that whole exercise? Because I've lived in Thailand and I know how resistant the Thais are. They are quite clean, but and they have a sense of social spirit. But how did you get that movement going? If you could, we want to create a forum where people get inspired and take lessons from other people who had worked as to how we can move forward with this. So your experiences on how did you motivate the community to do that plastic cleanup will be of great use to anybody else who wants to do something like this. So if you could just, in a few minutes, just tell us how that was achieved. Very good, thank you. When we first wrote the report in 2010, we started the program. That was before the SDGs had been initiated. So we had to create an indicator report from scratch. And in that process, recognize the so many different elements to a sustainable community. The interventions that we naturally felt inclined to promote, such as the problems with plastic on the beaches and plastics in the gutters and plastics in the mountains. Before we went to the government and said, hey, we have this massive problem, we should do this and this, for 2 years, we held town hall meetings with every ministry of the local government, including every ministry of the local government, including all of the local village chiefs, including local businesses, local marinas, local community elders. And through that process, the community basically worked on a program with us to envisage the future. What is the future that they want? And one of the overriding, ideals of the locals was that they felt that development had been too much. The destruction of the coast, which is the jewel of what Thailand's western coastlines are, were being completely destroyed.
And so they really wanted locally to create peace with nature and were looking for guidelines on how to do it. We then, specifically on plastics, we considered all of the different elements of how to change and to implement a plastic policy that mitigates the pollution. And like I expressed earlier, I identified that I thought the health ministry would be the strongest to support us, because in my experience, every time I picked up a plastic bag in the environment, it had water in it. And in that water, of course, is breeding mosquitoes. So I went to the health minister and said, "You have a problem with dengue fever. I think I have a solution. If we clean the environment, if we do a deep clean of the whole island and stay consistently on this problem, we could reduce dengue fever by as much as 30 or 50%. And it was through that process that the health minister then took us to the energy ministry, where in Thailand, of course, they import oil. So plastic bags are being used with an imported oil and thrown away. Again, wasted resources. We did the same thing with the local government's infrastructure division. They have a problem with flooding because plastic bags, of course, clog the drains, and so on. And with each ministry, we had a specific argument on how they could support it in their own way. And through that process, we ended up with full collaboration of the government. Now, we had one sticking point, and just to give you an idea of how interventions can work, we had one big sticking point on Phuket as a tropical island, and that was all of the beaches, maybe not dissimilar to the river in some ways, but all of the edges of the beaches had been privatized with restaurants and bars. And in Phuket, there were over 600 restaurants and bars on public beaches. So in our plan, devising the future, that was one of the problems that we identified. But of course, changing illegal structures, removing illegal structures, taking away people's livelihood is quite an upheaval in the local community. And it wasn't until 2015, when the military took power from the then prime minister, that the new prime minister, who is the head of the army, specifically took on this problem himself and was able to, using the courts and using the army's power, they were able to demolish 550 restaurants and bars and return all of the beaches back to nature with no commerce, no sunbeds, and no people selling things. The result 1 year later was that the first sea turtles laid eggs on our beaches in more than 30 years. There was a recovery in the coastline, in the coral, in the fishes. Dolphins returned, and the locals became very happy because for the first time in 30 years, they did get their beaches back. In that process, 5,000 people lost their jobs and had to be integrated into the community. But the environmental success from that one intervention is still being stood strong today, now 8 years later. So strong interventions can work and they can benefit the local community. Thank you. Thank you very much, sir. Anybody else? There's a Amitabh, a question hai. There's a question in the chat, and Sudhanshu हाथ ऊपर डाला. तो first, सुधांशु जी, आपको मैं परमिशन देता है बात करने के लिए. Sudhanshu ji has he's dropped out. Okay. There's one question, Nick, for you, which from Brijesh, which says, how do we recycle plastic material in our daily life for a general, for an ordinary human being? That's a fantastic question, and I've been asking that question for the last 10 years, and the easy answer is still not possible. It's still a polluting, highly toxic product that needs to be restrained and needs to be not used as opposed to recycled. So long answer short, there isn't an easy solution. Almost everything that microplastics and plastics are being used at the moment in recycling create downstream microplastic pollution. If you put it in the roads, it gets washed down into the rivers. If you put it into clothes, it ends up in the washing machines. If you put it into shoes, it ends up in nature. So very, very few things, unless you're using building blocks, for example, that are properly enclosed and don't create microplastic problem. There are very few things that plastics today can be properly reutilized for. Recycling is a myth.
You are absolutely right, sir. अभी निक सर ने जो बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, और कई इंटरडिपेंडेंट जो इश्यूज हैं वो इससे रिलेटेड हैं। वाटर पे वो उन्होंने बताया कि पानी के लिए वो उस पे क्रिटिकल कंपोनेंट उस पे काम कर रहे हैं। तो मैं आज जो लोग उपस्थित हैं उनको बताना चाहूंगा, पानी पर दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी एक काम कर रहा है सुजलाम के और सुमंगलम के तहत। 5 बेसिक एलिमेंट्स दैट इज एनश्राइंड इन आवर सनातन संस्कृति, द हिंदू संस्कृति। So that also says that all the 5 elements, they are interdependent, and there should be a equilibrium between all the 5 elements. Then we can mitigate these problems of climate change. So DRI is working on this. And एक इंट्रोडक्शन और मैं यहाँ कराना चाहूंगा। हमारे बीच में अपने उमा शंकर पांडे जी उपस्थित हैं। पानी पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा जिला है और उसके आसपास के क्षेत्र में, और इसके लिए इनको भारत सरकार का एक सर्वोच्च एक सम्मान जो होते हैं उनमें से एक पद्मश्री इसी साल मिला है उनको। खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, और हर खेत में पानी को संरक्षित करने के लिए तालाब, एक इन्होंने इतना बड़ा चेंज किया है उस एरिया में और लोगों की मानसिकता में। तो आज उपस्थित है हम लोगों के बीच में, हम उनका स्वागत करते हैं। उसके अलावा दीनदयाल शोध संस्थान के उपाध्यक्ष निखिल मुंडले जी, संगठन मंत्री अभय महाजन जी, वो भी उपस्थित हैं इसमें। सूरज कुमार जी बहुत लंबे समय तक अपने साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी इस गतिविधि से। ये कलिंगा इंस्टीट्यूट के एडवाइजर हैं, वो अपने साथ हैं, तेजेंद्र संधू जी। और उसके अलावा दीनदयाल शोध संस्थान के सारे प्रकल्प प्रमुख जो देश भर में अपना काम है, वो सारे लोग यहाँ जुड़े हैं, प्रकल्प प्रमुख और कार्यकर्ता। ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो जमीनी स्तर पर वहां पे इस काम को कर रहे हैं। जो जैसे उन्होंने भी बताया कि ये दीनदयाल जी की जो अपनी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की थी, सस्टेनेबल कंजम्पशन पे वो हमेशा जोर देते थे। और भारत सरकार ने 2017 से ही एक योजना शुरू की थी कि किस तरह से हम इन चीजों को, नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाएं। तो 2017 से ही दीनदयाल शोध संस्थान ने इस विषय को आगे बढ़ाया है। पिछले 2 वर्ष से एसडीजीज के ऊपर हम लोगों ने पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चित्रकूट में की थी, दूसरी भी हो गई। और अब इसको क्योंकि एक रेगुलरिटी देने के लिए, कंटिन्यूम बनाने के लिए, we are organizing every month this type of webinar, and that will culminate in the month of February every year at Chitrakoot. We will have a 2-day long international seminar of the expert on these issues. So this is a brief of our attendees and the issue. Now our next speaker is भैया 1 मिनट, just before we move on, जो चित्रकूट में हम एक मंदाकिनी नदी हम लोग के बीच संस्थान की बगल से चलते हैं। The Mandakini is a holy river. Chitrakoot, as you know, is where Bhagwan Ram spent 11.5 years in Vanvas with Lakshman ji and Sita Ma. And because it's a ghat where people come to take a dip in the river, in the holy river, when they come to do a parikrama. The ethos has changed. They now don't take a holy dip; they take a bath, and they bring their little shampoo packets and their soap, their washing soap, and pollute the river. So the institute, on every Sunday morning, we go to the river and we do a cleanup, and we get community participation. So if you take the lead in a community cleanup or a community participatory activity, to get other individuals to join through example is over a sustained period of time the way to go forward as to what individuals can do. So you start alone, you get 5 people to join you, another 10 join. We've been experiencing this in Chitrakoot. We've got the local municipal corporation to also help. So whatever we collect, their garbage vans come to collect it, and the municipal corporation or one of us feeds everybody who comes a samosa. So we try and make it a community exercise as well, and that's one of the ways to mitigate climate change, get plastic free, and create awareness as to what the situation is. So when they see all the dirt coming out of the river, and it's their river as much as it's ours, there's a little change in the mindset. So what individuals can do, individuals in your neighborhood, you can start a movement to start cleaning the plastic from the roads, and planting a tree and various activities. Yeah, thank you. Yeah.
बिल्कुल सही भैया, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे अपन को करना ही चाहिए। कम से कम 2 पेड़ प्रतिवर्ष भी अगर हम लोग लगाएं और उनकी देखभाल करें। पेड़ लगाना ही इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पेड़ों को लगाने के बाद उनकी देखभाल करना भी, उनको बड़ा करना बहुत जरूरी है। तो वो सरकारी स्तर पर भी और एनजीओ के लेवल पर भी आज मयंक गांधी जी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा उनका काम अपना महाराष्ट्र और देश के अन्य क्षेत्रों में चल रहा है, तो उनको भी हम सुनेंगे। उससे पहले मैं अगले जो अपने स्पीकर हैं श्री सरबजीत सिंह सहोता जी। Sarjeet ji works at UNICEF as a disaster risk reduction specialist. He is an architect and urban planner with over 25 years of professional experience of steering development and humanitarian strategies and programs across the government and frontline UN agencies. Sarjeet ji is an alumni of the International Visitor Leadership Programs 2005, Department of State, Government of USA. Widely traveled person, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अनुभवी व्यक्ति अपने साथ में जुड़े हुए हैं आज, जिनका विषय होगा ही विल स्पीक ऑन स्केल डाउन टू स्केल अप इंडिविजुअल्स लिंक टू द सिस्टम। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। प्लीज सर। नमस्कार। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इंक्लूडिंग मी हियर। अगर सही हो तो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही बात कर लूंगा, चलेगा? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, हिंदी में भी बात करनी चाहिए। वैसे मैं बहुत तेज नहीं हूँ हिंदी में, पर थोड़ा बहुत चल जाता हूँ। तो बेसिकली हम एक ग्लोबल रिस्क की बात चर्चा कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, पर उस पर जो उसकी जो प्रॉब्लम है वो लोकल है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि रिस्क इज ग्लोबल, रेजिलियंस इज लोकल। तो रेजिलियंस अगर लोकल है तो इट्स ऑब्वियस कि इंडिविजुअल्स का इसमें बड़ा रोल है। आगे चलते जाइएगा, है ना, अगली स्लाइड पे। वसंत भैया आगे कीजिए। हाँ, सॉरी, इसमें कुछ एनिमेशन आ गया था, आगे एक दो बार और प्रेस कर दीजिए। हाँ जी, हाँ। अब रही बात यह है कि कोई भी डिसीजन हम आज लें, आज कितनी सारी डिसीजंस, प्लास्टिक पे डिसीजंस को, पानी पे वगैरह वगैरह, कुछ भी डिसीजन लेते हैं हम, मंदाकिनी में जाके नहाते हैं, वो डिसीजन भी, और साथ में हम अगर साबुन ले गए या शैम्पू ले गए तो वो भी पोल्यूट कर दे। तो हर डिसीजन इज अ क्लाइमेट डिसीजन। अगर यहाँ से हम शुरुआत करें तो थोड़ा सा एक दो बार प्रेस कर दीजिए। मैं सॉरी, मैंने कुछ एनिमेशन बीच में छोड़ दी थी। हाँ जी, एक बार और। That's it. So there are billions and billions of decisions, tiny decisions, which happen at the individual level, are defining the fate of our planet, rather fate of the human races as a whole. Planet तो अपनी जगह ठीक है, वो तो अपने आप रिकवर कर जाएगा. So as a whole, the problem is very big, but the decisions and the actions are very tiny, and which is possible that we could take it. And so many examples you've heard about plastic waste being dealt with very effectively on the Phuket Island, and then range of other solutions. पर जो ये प्रॉब्लम है ग्लोबल, इससे हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सफर कर रहा है. ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर सेम इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है. सो पहली चीज ये, इसलिए इंडिविजुअल एक्शन थोड़ा सा डिफरेंशियल इम्पैक्ट के नजरिए से थोड़ा देखेंगे, है ना. तो अगर हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना है तो दो लेवल पर, एक पर्सनल बिहेवियर और दूसरा चेंज इन सोशल नॉर्म्स. अब मंदाकिनी की वो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ. पंडित जी, आपने कहा कि लोग बाग साबुन और शैम्पू, तो साबुन और शैम्पू का यूज एक सोशल नॉर्म बन गया है नहाते हो. अब उसे अगर वहां पर चेंज करना है हमें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. नहीं तो हम सारे हर समय वो प्लास्टिक कलेक्ट करते रहेंगे और नदी की वाटर की ट्रीटमेंट करते रहेंगे. सो दोनों सिरों पे काम करना पड़ेगा.
पर्सनल बिहेवियर्स, इंडिविजुअल बिहेवियर्स पे काम करना है और सोशल नॉर्म्स पे काम करना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नहाते वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, बट हो सकता है कि नदी में नहाते वक्त नहीं। सो आज जो मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, इसमें एक जो की इंसाइट मैं यूज कर रहा हूँ वो है कि लोग बाग, people make decisions by trade off between multiple types of values। बहुत सारे अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स हैं जिनमें से ट्रेड ऑफ करते हुए कोई डिसीजन होता है। कभी कभी ये पैसे का मुद्दा हो सकता है कि भाई यार ये 5 स्टार रेटिंग वाला फैन नहीं लेना है, 3 स्टार वाला चल जाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, बट देयर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स। तो कभी कभी हमारा धर्म, कभी हमारे सोशल वैल्यूज, कभी हमारा जनरल सॉर्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट जिसके थ्रू हम जिसमें हम रहते हैं, वहाँ के कई सारे वैल्यू सिस्टम्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। अगली स्लाइड। सो जो बिहेवियर्स हैं, जो 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 बिहेवियर्स हैं जिनको हम यूज करना चाहते हैं सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, वो कई सारे हो सकते हैं और एक ही साथ कई सारे बिहेवियर्स हम के साथ रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन। ये अमेरिकन एग्जांपल है, बट कितने परसेंटेज लोग क्या क्या किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? मुद्दा एक जगह से दूसरे जगह जाने का है, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द अफोर्डेबिलिटी, लोग अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं। तो जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक से ज्यादा बिहेवियर एक साथ एक व्यक्ति रख सकता है, और ये सही भी, इसमें इसमें कोई बड़ी गलत बात नहीं है। हाँ, ये है कि अगर हम लोकल मार्केट में जा रहे हैं तो शायद पैदल जाना ही बेहतर रहेगा या साइकिल लेके जाना बेहतर रहेगा। अगर उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है तो फिर कैसे जाना है आगे। नेक्स्ट। अब चर्चा कर लें थोड़ी सी मिशन लाइफ की। आप सब जानते हैं मिशन लाइफ क्या है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कॉप में, ग्लासगो में, कि इंडिविजुअल बिहेवियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये साइंस है, बट पॉलिटिकली सपोर्टेड है तो बहुत ही बढ़िया है। तो जब जब पॉलिटिकल सपोर्ट और साइंटिफिक रेलेवेंस दोनों साथ आते हैं तो बड़ा रिजल्ट निकलता है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूले के साथ निकला है। तो इस वक्त मिशन लाइफ में इस वक्त 75 बिहेवियर्स पे फोकस है, और आगे चल के और भी होंगे, बट पॉइंट इज कि 75 बिहेवियर्स को डिफॉल्ट बिहेवियर कैसे बनाएं। इनके बारे में हम जानकारी है हमारे पास में, हम सब जानते हैं, पर ये हमारा डिफॉल्ट नेचर नहीं है। आज भी हम जानते हैं कि नदी पोल्यूट हो रही है, पर फिर भी साबुन लेके वहां पहुंच जाते हैं। सो इनको डिफॉल्ट बिहेवियर कैसे बनाना है? तो एक एक ये मेरे सामने एक ये लगा हुआ था मेरा स्केच, तो मैंने उसको यहाँ उसकी फोटो खींच के यहाँ डाल दी। तो बेसिकली 2-3-4% लोग तो फटाफट प्रधानमंत्री जी की बात सुन लेंगे। कुछ और 10-15 लोग हो 10-15% होंगे जो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है और फिर उसके साथ में कुछ बेनिफिट भी होने लगा है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आ रहा है वगैरह वगैरह, तो वो भी ज्वाइन कर जाएंगे। बट उसके बाद डिफिकल्ट स्ट्रगल शुरू होती है जब 100% तक जाने के लिए। और कुछ लोग तब ज्वाइन होते हैं जब उन्हें बहुत सारी मदद मिलती है, और कुछ लोग तो फिर भी ज्वाइन नहीं करते हैं। सो आपकी संस्था इन एरियाज पे काम कर सकती है जहां पे आप लोगों को उसके बेनिफिट्स और उसके लिए बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करें, है ना। तो ये कम्युनिकेशन मटेरियल हो सकता है, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये सोशली सॉर्ट ऑफ रेलेवेंट
एग्जाम्पल्स ऑफ गुड प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें लेकर हम लोगों तक जा सकते हैं। नेक्स्ट, मुझे रोक दीजिएगा जब मेरे 8 मिनट हो जाएंगे। तो मैं क्योंकि बोलने में बहुत, हमारे यहाँ बोलने के लिए हमें पैसे दिए जाते हैं। तो नॉट टू वरी। अब बात रही कि हमें मालूम है और हम फिर भी नहीं कर रहे हैं, और पर फिर भी हमें अचीव करने हैं ये मिशन लाइफ का जो चीजें हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग सेम चीज को बिलीव करने लगते हैं, तब वो सोशल ट्रस्ट बनता है। ठीक है, तो हमें एक एक करके लोगों को जोड़ते जाना और फिर वो सोशल ट्रस्ट तक लेके जाना। तो इंडिविजुअल और सोशल दोनों में, यहाँ एक फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, आप उसमें बैकग्राउंड में देखेंगे एक डेंस फॉरेस्ट नजर आ रहा है, बट वो एक पैच में नजर आ रहा है। वो सेक्रेड फॉरेस्ट है इस गांव का, ये मेघालय में है, बट उसके आजू बाजू में आप जमीन देख रहे हैं वो एकदम बंजर पड़ी है। सीक्रेट फॉरेस्ट के उनके रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली वो सोशल नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स बिहेव करते हैं। कोई व्यक्ति एक वहां से पत्ता भी नहीं ला सकता है अपने घर पे, बट उसके बाहर आप देख रहे हैं। अगली अगली स्लाइड। हाँ, ये एक पॉइंट मैं कह दूं कि हम अक्सर, पिछली स्लाइड, फॉर्मल गवर्नेंस पे बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा आह्वान किया है, बट जो सोशल गवर्नेंस है, हमारी पंचायत हैं, उससे भी नीचे के लेवल पे जो 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 हमारी गवर्नेंस है, क्या वो, और फॉर्मल गवर्नेंस के एग्जांपल्स मैं अगली स्लाइड में लेके आऊंगा, क्या हम एक साथ इनको देख सकते हैं? बहुत जरूरी है कि जो पॉलिसीज बने वो लोकली बने, क्योंकि लोकली डिफाइंड पॉलिसीज आर बेटर इंप्लीमेंटेड and they are applied better, they are monitored better, etc etc. So पंचायत लेवल पे क्या पॉलिसीज बन सकती है हमारी टू एडवांस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, etc etc. और बहुत सारी पंचायत हमारे देश में इस तरफ जा रही हैं और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। नेक्स्ट, if you could go to the previous one. Yeah, I'll just quickly cover this कि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिसीज बन रही हैं। जैसे मैंने मेघालय की चर्चा करी, तो वहां पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, इन सारी कम्युनिटीज को अपने सेक्रेड फॉरेस्ट बचा के रखने के लिए पे किया जा रहा है पर एकड़ है। इसी तरीके से और अगर आप एक्सपैंड कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट कवर को, तो उसके लिए पे किया जा रहा है। एक पूरी पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ मेघालय की। तो हमारे देश में शायद पहली सरकार है जिसने फॉर्मल पॉलिसी बनाई है ऑन पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। यहाँ मैंने एक हाइपर लिंक किया हुआ है, PES जहाँ लिखा है वहाँ एक वीडियो है सरकारी, वो भी आप देखिएगा। बाद में देखिएगा, अभी मत देखिएगा। है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन क्रेडिट्स का प्रोग्राम लॉन्च किया है। 2009 में, बहुत पहले, पंजाब सरकार ने एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन लिया था कि यार अप्रैल में कोई भी चावल की खेती नहीं शुरू करेगा, क्योंकि अप्रैल में जब शुरू करते थे तो जमीन में से पानी खींच के पूरा खेत में भर देते थे और चावल उगाते थे, तो उसके कारण उनका सारा वाटर टेबल नीचे जा रहा था। तो एक डेट डिसाइड कर दी जुलाई की, उससे पहले कोई चावल की बुआई नहीं होगी। तो वो उसको लिंक कर दिया उन्होंने मानसून के साथ में। तो और इसका टैंजिबल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, बट उस समय बहुत डिफिकल्ट डिसीजन थी, सारे फार्मर्स इसके अगेंस्ट थे। पॉलिटिकल डिसीजन, difficult decision, but it has to be taken at some point in time. ये सब चीजें हमारी पॉलिटिकल डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस बहुत बड़े स्केल पे चेंज ला सकती हैं। ग्लोबल क्राइसिस तक इसको सॉल्व किया जा सकता है और एक शेयर्ड कॉमन वैल्यूज बन सकती हैं इनके अराउंड। बट जैसे आपने पहले पहले इशू में देखा कि फुकेट में 2 साल लगे उन्हें वहां तक आने में जहां जहां हम काम करते हैं। तो सस्टेन 2-3-4 साल काम करने के बाद ही इसके रिजल्ट्स आने लगते हैं। नेक्स्ट, अब
थोड़ी सी मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस की बात कर लें, क्योंकि अभी ग्रीन क्रेडिट्स का प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है। ग्रीन क्रेडिट्स के प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें से एक पर या दोनों पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक पहली चीज है डेटा एविडेंस, क्योंकि पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज तभी आती है जब उसका हमें मेजरमेंट, उसकी कैलकुलेशंस वो सब राइट होंगी तब। तो हमारी डेटा रेडीनेस एट विलेज लेवल, वो मेघालय वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें किस तरीके से कर रहे हैं वो समझाया है। दूसरा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो है लार्ज स्केल सोशल मोबिलाइजेशन। इसमें आपकी महारत है और हम सब भी इस पे बहुत काम करते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा जिस पे हमें काम करना है वो है सिस्टम लिटरेसी। मेरे टॉयलेट में नल में से जो पानी आ रहा है उसका किस चीज से लिंक है? वो पहाड़ों पर जो फॉरेस्ट है उससे लिंक है क्या है, या फिर जिन लोगों ने पोल्यूट किया वगैरह वगैरह उससे क्या लिंक है, और हमारे खेतों में क्या उगा रहे हैं क्या उससे उसका लिंक है क्या? सो बहुत सारी चीजों पे हमें क्या इंटरडिपेंडेंस है चीजों का, वो लोकल लेवल पे समझना जरूरी है। सर नेक्स्ट। सर 1 मिनट का और अभी कंक्लूड करेंगे। तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग आप बस इसको ये शेयर। लास्ट स्लाइड ही है। जी सर, जी सर। क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म मुद्दा नजर आता है, आम लोगों को लगता है अरे ये आज तो कुछ नहीं हो रहा है, बट इसके रोज इम्पैक्ट पड़ते हैं। और किस तरीके से हम ये शॉक्स और स्ट्रेसेस को एक बच्चे, एक माँ, एक पेरेंट्स, एल्डरली, उनके लिए क्या इसका मुद्दा है, डे टू डे क्या मुद्दे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म मुद्दों को डे टू डे मुद्दों में कन्वर्ट करना, ये एक प्रोसेस है। मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, एक एग्जाम्पल है। बट ये बहुत जरूरी है कि हम जब तक हम लॉन्ग टर्म मुद्दों को शॉर्ट टर्म मुद्दों में नहीं कन्वर्ट करेंगे, कि रोज पानी कलेक्ट करने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है बच्चे को, है, और बच्चों को पानी कलेक्शन में लगा रखा है, ये डे टू डे स्ट्रेस है। अगर खाना या वाटर सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी की इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, वो आज है? हो सकता है वो क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है, बट जिन लोगों के लिए है उनकी प्रॉब्लम तो आज ही सॉल्व करनी पड़ेगी ना। तो इंडिविजुअल काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म वल्नरेबिलिटीज को शॉर्ट टर्म एक्शन के साथ लिंक करें। मैं यहाँ रुकता हूँ, बाकी चीजें और स्लाइड्स में है, बट थैंक यू वेरी मच सर। आप स्लाइड्स को हम लोगों के साथ शेयर करा ही है आपने। हम इसको अपने रिकॉर्ड में भी रखेंगे और जो इसको कंपेंडियम में अपना बनाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से इसको शामिल करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें सस्टेनेबिलिटी से ही भी जोड़ना चाहिए और अपनी डे टू डे हैबिट्स में इसको लाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जो संस्थान जो पंच महाभूत और सुजलाम और सुमंगलम के माध्यम से काम कर रहा है, वो कहना भी उसका उद्देश्य भी यही है कि जो हमारी सनातन संस्कृति में भावनात्मक लगाव था पानी के साथ में, यानी कि जो आजकल समस्या पैदा हुई है नदियों में, जैसे भैया ने कहा होली डिप नहीं लेते हम, बात करते हैं साबुन लगा के। तो हमारा जो भावनात्मक लगाव था पहले यही था कि हम नदी में जाते थे, उसकी पूजा करते थे, नहाते थे। टैप्ड वाटर आने के बाद में और समस्या ये हुई, पानी हमें इजीली अवेलेबल हो गया, इसीलिए हम उसको वेस्टेज करते हैं उसकी। एक जमाने में होता था जोहर से, बावड़ी से या नदियों से या कुएं से जब पानी आता था तो इसकी उसकी इज्जत होती। तो वो हम अपनी सनातन संस्कृति वाली बातों को अपना ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से जो क्लाइमेट चेंज और जो पर्यावरण की समस्या पैदा हो रही है उसको हम दूर कर पाएंगे। बहुत अच्छा आपका उद्बोधन रहा सर। हम आपको एक बार इनवाइट भी कर रहे हैं कि आप चित्रकूट भी पधारें, और काम है हमारा नानाजी देशमुख जी ने जो अपने को बताया, तो आप निक सर, मयंक सर, आप लोग चित्रकूट आए तो बहुत अच्छा लगेगा। और वहां पे जो अभी से मैं इनवाइट कर दे रहा हूँ, जो हम फरवरी में 26-27 फरवरी को जो 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, तो आप बिल्कुल अभी से अपने शेड्यूल में रख लें। तो आप लोगों का हम वेलकम करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इन लाइन इज Priya, we'll just have some discussion और फिर हम लोग will go to the next speaker. ओके जी, तेजेंद्र जी आप बताएं। या तो सरबजीत ने बहुत दिलचस्प मुद्दा उठाया। एक तो के इंडिविजुअल का और पंचायत लेवल या लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नेंस पे हम क्या कर सकते हैं, इसका मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी एक टिप्पणी है इस पे। लेट 80s में मैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर के साथ लिंक था और
मेरी मदर मेरे यहाँ आई हुई थी, तो बड़ी परेशानी थी, बरसात का मौसम था, हम सब लगे हुए थे सफाई करने में। तो उन्होंने मेरे को एक उदाहरण दिया जो आज तक मैं नहीं भूला। वो ये था कि उनका गांव लुधियाना के जस्ट बाहर छोटा सा गांव है धांगरा, जिसमें मॉनसून क्लीनिंग होती थी, और उसमें एक नियम था कि हर परिवार से एक आदमी वहां जाके सफाई करेगा, और इसमें सिर्फ उन परिवारों को एग्जेम्पशन थी जिनमें कोई भी एबल बॉडीड मेल वहां नहीं था, क्योंकि वो आर्मी में काम कर रहा था। अगर उसके अलावा आप कहीं भी काम कर रहे थे तो उम्मीद ये रखी जाती थी कि आप आएंगे और आप आके अपने गांव की सफाई करेंगे। अगर हम पीछे देखें जो दशक रहे हैं, उसमें ज्यादा इंडिविजुअल से हटके, कम्युनिटी एक्शन से हटके हम इस दृष्टि में चले गए हैं कि सरकार का काम है, सरकार करेगी। शायद अब पूरा चक्र घूम के हम वापस आ गए हैं कि सारा काम सरकार का नहीं है, कुछ हमारा भी है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण मेरे को लगता है दूसरे राज्यों में भी होंगे, परहैप्स, जिन्हें हमें इकट्ठा करके ये नैरेटिव बनाने की जरूरत है कि इंडिविजुअल का और कम्युनिटी का भी इसमें बहुत रोल है। अकेले सरकार इस काम को पूरा नहीं कर सकती। थैंक यू। सर, जो तेजेंद्र ने कहा, I'd just like to add to this. हम ये संस्थान ज्वाइन किया था 1978 में। I was very young, हम 17 साल थे। नाना जी पॉलिटिक्स छोड़ के गोंडा गया था, तो गोंडा में कभी हम लोग काम कर रहे थे। वो फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया था उस टाइम पे, और जो कुआं था गांव में, वो गांव के बीच में होते थे, और जो भी कभी बारिश आती थी, सब जो कचरा था गांव की, इंक्लूडिंग काऊ डंग, सब कुछ वो कुआं के अंदर जाते थे बारिश के पानी के साथ। तो हम लोग एक अभियान चलाया था कि वो कुआं को साफ सफाई करो और उसकी दीवार बना दो और वो कुआं को ठीक रखो। और उसमें हम तो बहुत छोटे थे, हम इंडिया में पढ़ा नहीं ज्यादा देर, तो मेरा हिंदी अभी तक बहुत बढ़िया नहीं है। At that time it was almost it was terrible my Hindi. But I used to go to the villages and we used to, हम उसको कहते थे, ये in Uttar Pradesh, when you go to the village, the first thing they do is they offer you water and good, as it's part of our culture. तो हम बहुत छोटे थे और सब ने पता था कि बाहर से आए, हम आपका पानी नहीं पीएंगे, ये टट्टी का पानी है। तो so we used to motivate them to do this, और हम लोग ऐसा करते थे कि सरकारी का स्कीम हम लोग उसके वो कुआं को बनाते थे, बट if even one individual in the village refused to participate, मतलब एक भी ईटा नहीं उठाते थे, तो हम वो काम वो गांव में नहीं करते थे। Every single member of the community had to at least participate by lifting a single brick. Then some sense of ownership comes. Without the sense of ownership, we cannot create community action. क्योंकि वो मेरा नहीं है तो कुछ नहीं हुआ, तो मेरा होगा कभी मैंने कुछ उसमें कर लिया है, एक ईटा भी उठाया तो वो पार्ट ऑफ मेरा हो जाता है। तो जो तेजेंद्र कह रहा है कि जैसा कम्युनिटी को करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू गेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज टू पार्टिसिपेट, इसमें वो रोल होता है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। अपना दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैं नाना जी ने भी अपने को यही सिखाया कि जब तक इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होगी, तो इसीलिए दीनदयाल शोध संस्थान भी जो काम करता है गांव में, वहां पे करके स्पून फीडिंग वाला काम नहीं करता, जाके लोगों की पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन और उनकी ही इनिशिएटिव से काम करता है। ये हमारा जो दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट का ध्येय वाक्य उसमें ही है इस बात को कि पीपल्स इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन इज मस्ट। तो जब तक अपनी सेल्फ ओनरशिप नहीं आएगी, कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा। और बिल्कुल सही कहा तेजेंद्र जी ने कि गवर्नमेंट्स अकेले नहीं कर सकती, व्यक्तियों को आगे आने होगा, समुदाय को आगे आने होगा, सीएसओस जो हैं उनको आगे आना होगा, तभी हम कर पाएंगे और निश्चित रूप से कर पाएंगे इसको। एनीबडी एल्स? अपना साथ समीर शर्मा जी है, ही इज द सीईओ टू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, and he's used to be chief secretary for pollution. He's done a lot of work on climate change. समीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? तो
I'm just making you a co-organizer so you can shift and speak. समीर जी आप बोल सकते हैं? Very distinguished career. He's IAS and now he's the advisor to the Chief Minister of Andhra Pradesh. समीर जी I think he's not able to join. जी, और एक हाथ ऊपर है अनूप कुमार श्रीवास्तव. अनूप आप बोल सकते हैं. अनूप Anup and Dr. Satish Kumar Tiwari also. Yeah, Satish Kumar Tiwari, doctor. Looks like there is some tech issue. They are not able to get in. just allowing them to talk. Dr. Satish. डॉक्टर सतीश आप बोल सकते हैं. हाँ मैं बोलूं क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी आ रही है आवाज. मैं सरबजीत को भी सुना, मैंने तेंदुर को भी सुना और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी. तो दो चीजें सामने आ रही हैं. एक तो सरबजीत ने कहा डिफॉल्ट बिहेवियर, नॉट डिफॉल्ट बिहेवियर किस तरह से उसका प्रादुर्भाव हो, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवार का बहुत बड़ा योगदान होगा. बच्चों को क्या संस्कार मिले, पानी को उन्होंने किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है, किस तरह से करप्शन के अगेंस्ट उन्होंने लड़ना है. तो ये बहुत जरूरी है कि परिवार का एक बहुत बड़ा रोल, और ये हमारी चित्रकूट डिक्लेरेशन में भी हम लोगों ने इस बात को कहा है. इसी संदर्भ में पानी की प्रिजर्वेशन की बात हम करते हैं, लेकिन हर घर में आजकल आपका आरओ प्लांट लगा हुआ है. इसके अगेंस्ट मतलब कितना पानी, 5 गुना पानी आप वेस्ट करते हैं, और जो उसमें जो आप लीचिंग होती है जो मैग्नीज की और आयरन की, वो अननेसेसरी है. लेकिन कमर्शियल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा, इतनी एग्रेसिव, इतनी आक्रामक इसका एडवर्टाइजमेंट है कि पानी का वेस्टेज चला जाता है. कि यहाँ दिल्ली सरकार ने कहा कि साहब ठीक है 1.5 रुपए में 20 लीटर आप ले लीजिए पानी. तो इसके ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है. तो परिवार से ही शुरू होगा, तभी हम सोसाइटल मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं. तो एक बात. दूसरी चीज सरबजीत ने बहुत अच्छी बताई, उसने कहा डेसोनेंस, क्योंकि एक तरह से मिसमैच है, एक तरह से कहीं क्या हम सोचते हैं, क्या हम करते हैं और क्या हमें बदलाया जाता है. तो इसमें जो विषमता है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके संदर्भ में मैं 2 चीजें कहना चाहूँगा. एक तो ज़्यादा तारतम्य होना चाहिए, जो आदमी एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है, जो आदमी अपना नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा है, ज्ञान अर्जन कर रहा है उसमें, और जिसको उस ज्ञान को इस्तेमाल करना है. तो इम्प्लीमेंटर और रिसर्चर के बीच में एक तारतम्य होना चाहिए. इतना ही नहीं, अगर आपको एविडेंस पता है, साइंटिफिक एविडेंस है, और फिर भी आप पॉलिसी मेकर होते हुए या एक जिम्मेदार पद पे होते हुए उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हो, किस तरह से आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो. क्योंकि कॉस्ट ऑफ इनएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, खासतौर से जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जब भी हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की. तो 2 चीज़ें, एक तो कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर एंड यूजर ऑफ डेटा, और दूसरा ये है कि साहब अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, मान लीजिए मैं रिसर्चर कोई प्रोड्यूस करता है कोई फाइंडिंग, और वो उसको आप मिनिस्ट्री में एक्सेप्ट नहीं करता. मैंने फेस किया है कई बार जब हम पॉलिसी में इन्वॉल्व थे. तो साहब ठीक है, एविडेंस है आपका, आप रखिए अपने पास, और जो स्टेट से जो एविडेंस आता है उसको तो सेंटर वाले फिर अब उनके दूसरे तरीके हैं, बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेबल. तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और खासतौर से फंडिंग की इम्पोर्टेंस, ये कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर एंड यूजर, और हाउ टू एड्रेस डेसोनेंस. मैं यहाँ से यही कहना था मेरे को. बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने, और इन्हीं इश्यूज को सभी ने उठाया. नहीं तो अनूप जी, कैन यू स्पीक नाउ? Anup Srivastav here. जी. Actually, I had raised my hand after Mr. Nick had finished his talk, but somehow I was not enabled, so I could not raise my question. If I am allowed, I can raise the question. Otherwise, you can proceed. No, please carry on. Mr. Nick, if you are hearing, actually, let me introduce, I am founder, chairman, and director of Foundation for Campaign Against Plastic Pollution. So we are an organization who is specifically and dealing only with plastic pollution. So one thing that we
we are trying is to bring about behavioral change and lifestyle changes. And but it is the kind of mindset that has set in by now because of the repeated use of single-use plastics. When you urge people to give up single-use plastic, they ask where is the alternative? And the alternative they will look for is only another single-use item. Why should a single-use plastic be replaced by another single-use material? The concept of single-use or disposable commodity itself is environment unfriendly. But people's mind is straight-jacketed. They think only in terms of replacing it by another disposable item, and it should be cheap like plastic and things like that. So we find very, very difficult to convince people to switch over to reusable items as against single-use plastics. What is your comment on that? How have you dealt with this kind of issue? I agree. That's a critical component, and without a societal change, and let's assume for a moment we're waiting for the government to change their policy away from single-use products. Now, the reality of let alone this transition to bioorganic compostable packaging and the transition away from single use is going to be it is a task that is being addressed globally, but we know that that transition is going to be too slow. So then it falls back to the consumer, and he has to make the right decision. Now that comes partially from education, that partially comes from product availability and what are the options in your local area, and partially it comes from your own resourcefulness and whether you're awake to the problem that plastics cause. Now, in the case of communities where I've seen this work very well, we've done two things. One is ensure that there's a community center in the local community that at an education level takes the responsibility to engage the community on all the different types of waste to clearly show what can and what cannot be done with it. And that can be a volunteer-led community center. I'm currently building 3 of them, one here in Pokhara, one in Koh Payam in Thailand, and one in Phuket to do specifically that. The second aspect, aside from local knowledge and local hands-on experience, is the creation of those skills and that knowledge into a video format and into a format that people locally can understand. And I think that's through Chichikut and what you're doing, that's going to be your long-term plan, is to videoize and to record these skills so that they can be easily transferred. But the third and maybe most important aspect as a consumer is that I need to be able to go to a place that I can refill what things I need to use. So you need a refill center that hopefully is then creating those products locally. Hopefully they're bioorganic. Hopefully they're, a positive for the environment as opposed to a chemical negative. And that process then can be done in the local community. So one of the things I think with Chichikut and one of the programs you could look to do is for basic consumables, which in India is not the biggest percentage when it comes to purchasing and to expenditure. I think in India, generally about 40% or something of money is spent on energy, around 15% is spent on food, 15% on private travel, and I think it's around 5% on consumables, the detergents, the soaps, the clothing, things like that. So if you can provide an alternative that is local, that's homegrown for your detergents and for your toothpaste and for all these things that come in little packages, I think that goes a long way to mitigating the plastic and therefore avoiding the problem completely. As a consumer, we all have the capacity to signal, to make a message to manufacturers and to providers of these products that actually we can do it locally and people can buy locally without having to buy these single packages. I'm sorry, that's a long answer, but I hope that answers your question. Really, बहुत अच्छी बात कही आपने सर. अभी हम लोग last before we go on, Sandeep wants to make one small point. We'll let him do that and we'll continue to the next speaker.
Thank you. Ms. Satish made very exceptional points. I thought I should add one more thing there, that about small data and big data. We take a lot of evidence, big data, to the ministries and get the policies out. मुझे वो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ वर्क है, उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, पर उससे भी ज्यादा बड़ा रिस्पेक्ट उसके लिए जो स्मॉल डेटा यूज करके एक पंचायत पॉलिसी बनाती है अपने, है ना? तो फीडबैक लूप्स, जो छोटी फीडबैक लूप्स हैं सिस्टम में से जो निकलती हैं और जो लोकल एक्शन को फ्यूल करती हैं, मुझे लग रहा है समय आ गया है, क्योंकि हमारे गांव में इस वक्त इतना कॉम्पिटेंस, कैपेसिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, हर चीज का एक्सेस इतना बढ़ गया है, और पढ़े लिखे लोग बाग मिल जाते हैं आपको हर गांव में, जो बात समझते हैं। और सरकार ने बाल सभा, महिला सभा और ग्राम सभा, तीनों लेवल ला दिए हैं अभी। अब ये नहीं कह सकते कि हम महिलाओं की बात नहीं सुनी या बच्चों की बात नहीं सुनी, नहीं। आज के दिन में हम हर तरह के एविडेंस को पंचायत में ले जाके प्लान में डलवा सकते हैं, और जो पंचायत नहीं कर सकती वो शायद अपवर्ड जाएगा। सो आई थिंक वी organization like ours should work on small data, small feedbacks. That's very important. तो सही कहा सर आपने। हम लोगों ने जो पिछले 2 साल में किया वो यही किया। अब जैसे अभी उमाशंकर जी अपने साथ में हैं, ये वहां पे बांदा जिले में इन्होंने काम शुरू किया, और आज पूरे देश में इनकी खुशबू फैली है। प्रधानमंत्री जी के कई कार्यक्रमों में गए, और आज वो योजना पूरे देश में लागू। हम लोगों ने इस तरह से इस जगह जगह जाके ऐसे लोगों को जिनके पास इस तरह की नॉलेज थे उनको इकट्ठा भी किया है, जो हमारा पिछले 1 साल में अपना कार्यक्रम हुआ था। तो वो भी एक अलग डाटा है, हम सबके साथ शेयर करेंगे उसको। अभी आदरणीय समीर शर्मा जी अपने लोगों के साथ जुड़ गए हैं, जो जैसा परिचय वसंत भैया ने उनका दिया था। अगर वो कुछ बोलना चाहेंगे, समीर शर्मा जी IAS अधिकारी हैं, आंध्र प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं, पहले चीफ सेक्रेटरी भी रहे वहां के। समीर शर्मा जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जो उन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम इज ग्लोबल बट द रेजिलियंस इज लोकल, और दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको डिफॉल्ट बिहेवियर बनाया जाए अगर, ताकि आदमी को बिना सोचे वो करना शुरू कर दे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। Now we move on to our third and very important speaker. He is a scientist. Mr. M. Prabhakar obtained his BSc Agriculture and MSc Agriculture from Andhra Pradesh Agriculture University and did his PhD in entomology from IARI, New Delhi. His key areas of interest are climate change research, remote sensing of crop stress, and decision support system for crop stress management. He has 7 years for research experience in ICR Center. Presently, he is leading NICRA project, then flagship network project of ICR, being implemented in 41 ICR institutes, 151 KVKs across the country. He has to be his credit 54 research publications, authored and edited several books. Dr. Prabhakar is the visiting scholar, Oklahoma State University, USA, fellow of the Royal Entomological Society, London, NIFIC fellow, Netherlands, Mesher Fellow, Israel, Fellow of National Academy of Biological Sciences, Fellow of Entomological Society of India, and Plant Protection Association of India. He is the recipient of Young Scientist Award by Department Science of Science and Technology, Best Science Award Crop Science by Pearl Foundation, Bangalore, Outstanding Agricultural Scientist by B.V. David Foundation, Chennai. He has been deputed by Government of India to represent in several international forums like SARC, G20, Quad, BIMSTEC, IPCC, UNEP, etc., related to climate resilient agriculture. Very recently to the COP26 at Glasgow, UK, and UNFCCC World Climate Change Conference at Bonn, Germany. He will speak on national innovations in climate resilient agriculture. Dr. Saab, he is very distinguished researcher and guide. Prabhakar sir. He has just disconnected. I'm just trying to speak. अब भाई साहब आप यहाँ आए। जी जी हाँ है। जी जी हम शेयर करते हैं आपका स्क्रीन।
Yeah, thank you, Amitabh, for the kind introduction. And thank you, Vasant, for having me here. Can I have slides, please? So I'll be sharing our experiences in this important area of climate change in agriculture sector. It's a research project funded by Government of India. It's a pan-India project where we work with the scientists, with the farmers, and also with the policymakers. The main aim of the project is to take forward the climate resilient agriculture initiative in India. Vasant, can I share from my side? It's all right. It's okay. Yes, I'm sure you can. I think you can advance it. I'm just going to make you the presenter. If you press on share, you'll find files and you can share from there. There's a share button and files, and you can choose your if there's an issue, I'll share for you. Just tell me next, sir, and I'll do that for you. Okay, done. Yeah. Can I stop sharing? Share it. You are sharing, sir. I'm not able to load the file. Sharing. I can see it on my screen. Should I do it for you, sir? Yeah, please. Yeah. Sir, it is on the screen now. Anyway, I'm not able to see it. Anyway, I'll make a presentation. Okay. Yes, sir. It's on the screen, sir. Your slide 2 is on there. Yes. So as I said, this is a National Innovations in Climate Resilient Agriculture. It's funded by ICR. Can I have next slide, please? It's there. Yes. So this is basically a network project of, as I said, ICR involving many ICR institutes. We have around 110 ICR institutes, 40 ICR institutes part of this project. And then we have four major objectives in this project. First one is to conduct the strategic research, where we try to understand the impact of climate change on several aspects of agriculture, several crops, livestock, fisheries, all these things we try to do and try to develop innovative technologies to withstand the impact of climate change. This is objective number one. Number two is to demonstrate the already available technologies in the farmers' fields and see how, to what extent these technologies work in the farmers' fields. The third objective is to strengthen the capacities of the stakeholders. It could be farmers, it could be scientists, or many other stakeholders. Finally, to draw some policy guidelines for the governments to upscale the climate resilient agriculture in this country. As I said, it's a pan-India projects. We have different centers across the country. We have around 151 Krishi Vigyana Kendras and many ICR institutes, agriculture universities are involved in this project. Next, please. So this research project involves several infrastructure facilities. As you see here, we can increase the temperature, we can increase the carbon dioxide, and then try to grow different commodities. It could be crop, or it could be livestock or fisheries. Then try to understand to what extent the impact is, and then also try to identify the crops or the varieties which can withstand the impact of climate change. That is the purpose. We have such kind of infrastructure facilities established across the country, not only in one place. This is what the picture what you see on the screen is from New Delhi. We have such centers at around 7 to 8 places in the country. Next slide, please. Now, the first thing what we did is we try to categorize the districts in the country as per the risk. I don't want to go into details what is the risk. Risk encompasses of vulnerability, exposure, and hazard, which has more than around 38 indices inbuilt into that. So taking all these things into consideration, we classified the districts. As you see in the right side of the photograph, in the image, the red color districts are the districts which are highly risk prone. And the orange color districts are moderately risk prone. So out of 650 districts,
half of the districts come and fall under the categories of very high and high. So this is the situation what we have in our country. Taking this as a starting point, next please. We have identified around 151 vulnerable districts out of the 310, which are highly vulnerable to climate change. Then we try to bring in all the available technologies into those districts. Because of the budget constraint, we cannot implement the project across the districts. However, we have selected one village which represents the entire district. So we try to implement all our technologies in this district. And as I said, this project started in 2011. Now almost 10 years over, 10 years passed. So we had several experiences of different climate change aspects. It could be drought, cyclone, flood, or a combination of either of these things. And you can see the districts where these events have been experienced. And we have started with around 2,000 plus technologies to test and evaluate in the farmers field with the participatory approach of the farmers field. After 10 years period of time, now we could able to narrow down to around 350 technologies which have been tested, time tested, and found acceptable by the farmers. So this has been done in 446 villages and several thousands of hectares covering thousands of farmers. Next, please. With this experience, since these technologies are highly location specific, one technology will not shoot for all the states. So what we did is we tried to cull out those technologies which are specific to each state. We have done it for almost 7 states now, based on our 10 years experience. This has been documented and shared with the respective state governments. The purpose is for further upscaling, because what our area of operation is very, very limited. Maybe in a state, maybe 4 or 5 districts, 5 villages. So it has to be upscaled. Now, the best part of it is these technologies have been proved that they can provide the resilience. So the governments or any other organizations can work for upscaling these technologies. Besides this, we also work with the governments to sensitize every year state governments about the likelihood of the different drought or other events, so that the state governments can initiate proactively the different measures. We also initiate several capacity building programs. You can see more than 1,000 scientists are involved here, many research scholars and farmers. Finally, the impact of the climate resilient agriculture, what initiative we have made is, we showed that yes, it is possible to make the agriculture carbon positive. So we could able to increase the carbon sinks depending on the village and the situations, somewhere between 7 to 96%. Of course, yield income gains are observed, and then huge capacity building has been done among the different stakeholders. Upscaling of taking our example or NICRA success example, many programs have been initiated. One such examples are Pokhara in Maharashtra, where the concept has been expanded to around 5,000 villages, millions of dollars funding from World Bank. It was honored. And then a recent e-success project by funding from ADB, 1.5 million is still ongoing. And several state governments, for example, Bihar, they have last year they have allotted 200 crores towards making villages climate resilient. Like that, many other Odisha, Karnataka, they also initiated this kind of things. Way forward, I think the upscaling should be continue, and it should be mainstreamed into climate resilient developmental plans of the state government. Unless mainstreamed, the individual efforts like NICRA may not be enough. The recent opportunity is social corporate responsibility initiatives. We should tap this initiative and try to mobilize this towards making villages climate resilient. To answer the individual, how individuals can make the agriculture climate resilient. One important point is, unlike other sectors, agriculture sectors is both as a source and also a sink for carbon. So we have an opportunity here. Like other sectors doesn't have this opportunity. So our main purpose should be to reduce the emissions and also to increase the sequestration. Both these things is possible in agriculture sector. How do we do it? The 3 aspects.
One is judicious use of fertilizers. Fertilizer use makes huge difference because this is the main source of GHG emissions. There are several techniques like to be soil health-based, health card fertilizer application or precision application. There are neem coated area already. Government of India has initiated the scheme, and then irrigation, micro irrigation. Many state governments are giving huge subsidies now. Use of ITs, machine learning tools are also coming up. Use of drones are coming up, and the choice of crop. There is also thinking from the government to shift from the rice wheat system to other less water required crops. This also been initiated. And then the earlier thinking was to go for frequent deep tillage. Now it's till less, harvest more. And then agroforestry, submission agroforestry are made paid. So that was the call given, and thereby we can create a lot of carbon sinks. And the most important thing is reduce food loss and wastage. This is where we have been lagging behind. Estimates indicate that somewhere between 25 to 30% food goes waste in this area. So there are certain, the government of India a couple of years back, they have initiated certain schemes. It's also responsibility of individuals to this problem. Then, as I said, the previous speaker said, unless there is a community mobilization, the success is not possible. So, thank you. With the limited time, is what I would like to say. Thank you very much, sir. बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर। और ये निकरा प्रोजेक्ट दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में इसको कर रहे हैं। आज हमारे साइंटिस्ट भी इसमें जुड़े हुए हैं जो इससे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और निश्चित रूप से एक बड़ी सफल स्कीम रही ICAR की, और इसके जो रिजल्ट्स भी आए हैं बहुत अच्छे आए हैं। 151 KVKs के माध्यम से और ICAR इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से लागू की गई है। किसी का कोई प्रश्न हो अगर तो पूछ सकते हैं, या फिर मैं आगे बढ़ूं। किसी को पूछना है कुछ? अपने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो यहाँ अवेलेबल है इस समय, नेगी जी, चंद्रमणि त्रिपाठी जी, उपेन जी। नेगी जी, आपको परमिशन टू टॉक दिया है। नेगी जी, में चैट इसमें अपने क्वेश्चन आंसर में कुछ लोगों ने जो कहा है वो बता रहा हूँ। डॉक्टर सुरेश सरवटकर जी उन्होंने कहा है कि वी आर एजुकेटिंग, नेगी जी एक सेकंड जी, हाँ सर, वी आर एजुकेटिंग द विलेजर्स ऑन हाउ टू क्लीन द ड्रिंकिंग वाटर बाय यूजिंग सिंपल मेजर्स लाइक यूज ऑफ एलम। द सेडिमेंटेशन ऑफ डर्ट ड्यू टू एलम इज वेरी गुड एंड इफेक्टिव इन इफेक्टिव एजुकेशन। सूरज कुमार जी ने कहा है व्हाट कैन बी द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट फ्रेंडली इंडिविजुअल बिहेवियर। नेगी जी, नाउ यू कैन स्पीक। हाँ सर, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर प्रभाकरन जी का भी जो उनका जो अपना निकरा प्रोजेक्ट का जो एक्सपीरियंसेस थे और बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमने भी इस प्रोजेक्ट में 10 वर्षों तक काम किया है सतना डिस्ट्रिक्ट में, और एक ऐसे गांव में जहां पर क्लाइमेट जो चेंज का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला था। और उस गांव में जो हमने प्रमुख रूप से जो गतिविधियां जो 4 सेक्टर में हमने, जैसे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम किया, या जो हमने वहां पे क्रॉप सब्स्टिट्यूशन पे, और वहां पे जो हमने जो प्लांटेशन जो और पे काम हुआ है, और प्रमुख रूप से जो क्लाइमेट आपका लिटरेसी बढ़ाने का, क्योंकि फार्मर्स का अभी तक जो परसेप्शन है क्लाइमेट चेंज पे, उसको भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अपना वो क्लाइमेट चेंज को किस रूप में देखते हैं और समझते हैं। और जब तक उनकी वो इस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक उनकी जो पार्टिसिपेशन, जैसे अभी आपने कहा है कि पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट पीपल का बहुत जरूरी है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे अनुभव किया है कि हम जो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज पे अगर हमको सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट मिले हैं तो वो हमारे को मिला है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने स्थापना वर्ष से ही चित्रकूट में
हम लोगों ने वर्षा जल संरक्षण पे जो हम लोगों ने काम किया, नेचुरल वो भी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, और लगभग हमने 13,536 हेक्टेयर एरिया में जो यहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का काम किया था, जो ट्रीटमेंट किया था अपना, जो स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेंचिंग का या फार्म बंडिंग का, तो उसके रिजल्ट अभी तक जो काम हमारा जो 2 दशक पहले हुआ था, उसके रिजल्ट अब तक देखने को मिल रहा है और लाइवलीहुड लोगों का इम्प्रूव हुआ है। मेरे साथ यहाँ पे 2 फार्मर्स जो कि निकरा प्रोजेक्ट से, और वो दोनों ही फार्मर्स ऐसे हैं कि जिनको नेशनल लेवल पे भी अवार्ड मिला है, और बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट हम लोग इस दिशा में भी आगे, क्योंकि अभी वर्तमान में हालांकि हम लोग इस प्रोजेक्ट के पार्ट नहीं है, परंतु अभी भी हम लोग, तो वहां पर हम लोगों ने जो हमने निष्कर्ष के रूप में मैं अपने 2 बातें रखना चाहूंगा कि पहली चीज है कि हम लोगों ने पहला चीज क्या कि पीपल परसेप्शन क्लाइमेट चेंज पे क्या उसको स्टडी किया। दूसरा था कि प्लानिंग एट द लोकल लेवल, कि वहां के लोगों के साथ बैठ करके प्लानिंग हम लोगों ने किया। और तीसरा जो था कि उनका इन्वॉल्वमेंट और जो पार्टिसिपेशन जो प्रोजेक्ट में, और उसके जो रिजल्ट हम लोगों ने देखने को मिला कि आज वहां पे, जबकि एक समय था कि लगभग वहां पर जो है आधे से अधिक जमीन जो है वो फैलो पड़ी रहती थी, वेस्ट लैंड थी। आज वहां पे सिंगल इंच जमीन भी ऐसी नहीं है जहां पर खेती नहीं होती है, जहां फार्मर जो है एक भी फसल मुश्किल से ले पाते थे, आज वहां पर 2 से 3 फसलें लेने में सक्षम हुए हैं। वाटर टेबल इंक्रीज हुआ है। अभी आपको एक थोड़ा सा, मैं किसान है अपने वहां के, वो आपको इसके बारे में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में आगे बताएंगे। नेगी जी 2 मिनट, बस 2 मिनट का सर, 2 मिनट। बस जी जी सर। हाँ, मैं राम आश्रय यादव कृषक भरगमा से हूँ। हमारे यहाँ जो निकरा प्रोजेक्ट से कार्य हुआ है तो काफी परिवर्तन हुआ है। हमारा जो लिफ्टिगेशन चलता था वो दिसंबर में वहाँ का नाला सूख जाता था, वो सिस्टम बंद हो जाना था। लेकिन निकरा प्रोजेक्ट से कंट्रोल ट्रेंच का काम हुआ, तालाब का काम हुआ, उससे वहाँ पर नाले का जो है तो यानी वाटर लेवल बढ़ गया। वो यानी दिसंबर की जगह पर अब अपना फरवरी तक चल रहा है। ग्रीष्मकालीन जुताई से हम लोगों को बहुत फायदा मिला। पहला फायदा तो यह मिला कि जो बरसात का पानी गिरता है तो हमारे खेत में रह जाता है, खेत से बाहर नहीं जाता है। हमारे यानी जमीन में जो है तो जल संधारण करने की क्षमता बढ़ी। जो हमारे खेतों में नाजायज खरपतवार होते थे वो धूप के कारण गर्मी में सूख जाते हैं या कुछ नीचे दब जाते हैं। कुछ कीटाणु होते हैं जो हमारे फसल को नुकसान करते हैं, वो गहरी जुताई के कारण जो है तो हमको बहुत फायदा मिला है। हमारे गांव की जमीन जो है तो पहले काफी परती पड़ी रहती थी, लोग एक ही फसल बोते थे एक वर्ष में। अब जो है तो जब से निकरा प्रोजेक्ट चला तो हमारे यहाँ की जमीन 100% बोई जाती है। और हमको निकरा परियोजना के तहत ऐसी वैरायटी दी गई जो कम समय में पकने वाली है और जो आज का मौसम बदल रहा है उसको सहन करने की क्षमता होती है। और मैं ये देखा कि इसमें बीमारियां भी कम लगती हैं, तो हम लोगों को बहुत फायदा मिला। आज हमारे गांव के किसान जो है तो यानी दोनों फसल की खेती करते हैं, कुछ किसान तो 3 ही फसल लेते हैं, गर्मी की भी खेती करते हैं। हमको निकरा प्रोजेक्ट से बहुत फायदा मिलता है। मैं तो चाहता हूँ कि इस प्रकार की प्रेरणा हमारे गांव में चलती रहे, हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्राउंड पे जो काम हो रहा है उसकी एक झांकी थी, और दीनदयाल शोध संस्थान के बाकी केवीकेस भी निकरा प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और उस पर भी वहां पे उन्होंने काम किया इस क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर के ऊपर। अब हम सुनने को तत्पर होंगे सब लोग मयंक गांधी जी को। मैं उनका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दूंगा। मुंबई में जन्मे, बीएससी और बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा उन्होंने लिया। Mayank Gandhi was an international urban planner who turned into a social activist. He was earlier a core member of India Against Corruption movement and part of the national executive of Aam Aadmi Party. But in 2016, he left politics completely and started his own NGO, Global Vikas Trust, to work in some of the worst area of India for farmers' welfare. Since then, GVT has been working to multiply farmers' annual income from rupees 20 to 25,000 to over rupees 1 lakh per acre. With his model of changing cropping pattern, he has been successful in removing over 19,000 farmers' families from the poverty trap in 2,900 villages of Maharashtra and Madhya Pradesh.
This has been achieved by planting over 40 crores fruit trees. 40 crores for fruit trees. 4 crore. 4 crore. Sorry, sir. And training and supporting farmers to increase their income. A new state-of-the-art Krishikul Farmer Training Center is being constructed to train farmers from all over the country to increase their income by 4 to 8 times. In his organization mainly working in the Beed district's Parli Taluka. Over 15 villages he has taken care of, and he has worked with the Deen Dayal Research Institute's Krishi Vigyan Kendra at Ambajogai. So he will speak. He will speak on his model of development that also mitigates climate change. Gandhi sir, please, you're most welcome, and you please speak on the subject. नमस्ते। मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो शायद आपको पसंद ना आए, but that's my point of view. I hope you will tolerate me. तो मैं एक इंटरनेशनल अर्बन प्लानर था और ये सोचता था इस देश को कैसे बदला जाए। तो जब देश में वापस आया सब छोड़ के, तब बाकी सब मैंने अटेम्प्ट किए, लेकिन गांधी जी कह रहे थे इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। तो गांव में चले गया विदाउट हैविंग सीन अ विलेज इन माय लाइफ। एक लगान पिक्चर में गांव देखा था, उसके बाद कभी देखा नहीं। मुझे मराठी नहीं आती थी। मैंने अपना धीमा कर दूं, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या कह रही हो? बाकी लोग अपना स्पीकर बंद करेंगे प्लीज। जो अटेंडीज हैं अपना बंद करेंगे प्लीज। मयंक सर प्लीज गो अहेड। नहीं तो मैं देश बदलने आया था। वो एग्रीकल्चर तो क्या है ये मुझे पता भी नहीं, और एक्चुअली देखे तो अभी भी पता नहीं है। लेकिन गांधी जी कहते थे गांव में बसते हैं भारत, तो मैं सोचा चलो गांव जाके काम करें। और थोड़ा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का था। मैं इमरजेंसी के विरुद्ध भी गया था, ये अन्ना मूवमेंट भी था, उसमें भी जुड़ा था। तो मुझे ये लगने लगा कि देश बदलना है तो ये कैंपेन, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम से नहीं बदल सकता है, देश मूवमेंट से बदल सकता है। और अभी तक जितनी मूवमेंट हुई ये सारी नेगेटिव मूवमेंट्स हुई। कि वो बिल्डिंग गिराने तो जाते हैं, लेकिन नया बिल्डिंग कैसे बनाना इसका ब्लूप्रिंट भी नहीं है और प्लान भी नहीं है। इसलिए मूवमेंट सक्सेस होने के बावजूद देश में बहुत बड़ा चाहिए उतना बदलाव नहीं आया। तो मुझे लगा कैन वी मेक अ कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट, अ डेवलपमेंट मूवमेंट। तो मैंने सोचा मैं कोशिश करता हूँ, और मैंने अपना घर बार बेच दिया और मैंने चूज किया ऐसा गांव जो उस समय मुझे लग रहा था द वर्स्ट एरिया इन द कंट्री, यानी मराठवाड़ा हाईएस्ट फार्मर सुसाइड्स, उसके अंदर बीड वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, बीड के अंदर परली वर्स्ट तालुका। मुझे लगा अगर मैं इसको बदल सकूं तो इसको मैं देश को बदल सकता हूँ। उस तरह से मैं गया। और सॉरी मैं अपनी 10 मिनट में ट्राई करूंगा पूरा करने को, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट थोड़ा जर्नी कहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकली बात करने वाले तो सामने सारे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से मैं गांव में जाके मैंने काम करना शुरू किया। टिपिकली मैनेजमेंट कंसल्टेंट था, तो मुझे लगा मुझे सब नॉलेज है। तो गांव में जाके समझ में आया मुझे कुछ नहीं आता है, और अनलर्न करने के बाद ही सब कुछ होगा। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक मूवमेंट, और एक धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया। हजारों की मूवमेंट हो गई, और उस मूवमेंट को कैपिटलाइज करके फिर पानी का खूब काम किया। 45 दिन के अंदर हमने 70 किलोमीटर ऑफ रिवर बनाई, 162 तालाब बनाए, चेक डैम्स बनाए। ऐसे करके 500 करोड़ लीटर पानी का स्टोरेज हमने तैयार कर दिया। अब ये कोई हमारा फोकस एनवायरनमेंट नहीं था, मेरा फोकस पॉवर्टी था। इस देश को बदलना है तो पॉवर्टी के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो फिर एक बार ये मूवमेंट बन गया, तो मैं इस मूवमेंट को अभी इनकम कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। हमने क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया, कॉटन सोया से फ्रूट्स की तरफ ले गए, फिर उसमें एक इकोसिस्टम बनाया, एक बैकवर्ड किया, काफी कुछ टेक्निकल लोगों को साथ लेके बहुत कुछ करने की कोशिश की। और जो 15 गांव में आप बोल रहे थे, वहां से आज मैं 2900 गांव में काम करता हूँ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के।
और मैंने कहा शुरुआत की आपने 15 गांव से। जी शुरुआत की शुरुआत वहां से। और अभी जैसे काफी कुछ ग्रो कर भी रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी बना रहा है, जो माने हमारे एक तो पुश थियरी था कि हम वर्स्ट एरिया ऑफ इंडिया में जाके किसानों की इनकम जो करीब 25,000 रुपया एकड़ है, वो आज के दिन में उसका एवरेज 2.5 लाख रुपया पर एकड़ हो रही है। तो 10x बढ़ा हुआ है, 4 to 10x के बीच में किसानों की इनकम बढ़ी है। और थोड़ा रेस्टलेसनेस ये है कि मैं तो 2,900 गांव में हूँ, भारत में 6,43,000 गांव है। हाउ डू आई चेंज दिस कंट्री? और लेकिन ये लगने लगा है कि अगर हम सोने की चिड़िया वापस बनना है, तो अगर 4x to 10x अगर किसानों की इनकम बढ़ती है तो ही बन सकता है, उसके सिवा मुझे कोई मार्ग दिख नहीं रहा है। तो एक रेस्टलेसनेस है, एक स्केल के ऊपर काम करने की इच्छा है, एक इम्पैक्ट के ऊपर काम करने की इच्छा है। तो ये मैक्रो रन जो हो रहा है, उसमें शायद कहीं ना कहीं मैक्रो हम लोग उतना अच्छा नहीं डिस्कस कर पा रहे, नहीं, यानी एक ट्रेड ऑफ है कि मैं एक जगह पे जाके बहुत अच्छा काम करूं या लोगों को पॉवर्टी ट्रैप के बाहर निकाल के मैं आगे दौड़ते रहूं। आई हैव चोजन टू डू द, बट जैसे जो एक्सपर्ट्स मैं जो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने में आ रही है, और मेरे अंदर वो रेस्टलेसनेस है कि हाउ डू आई ट्रांसफॉर्म दिस कंट्री। प्लास्टिक बचाएं, अरे वो उससे देश नहीं बचेगा, ये काम करें उससे पानी बचाने से देश नहीं बचेगा। पूरा देश बचाना है तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी। एक 0 से 1700 तक हमारे पास 33% इकोनॉमी थी, 30% ट्रेड था, आज 2.38% इकोनॉमी है। आज भारत डूब भी गया तो मुझे लग रहा है सब लोग श्रग करेंगे शोल्डर और बोलेंगे ओ यस इट वाज अ वंडरफुल कंट्री। बट मुझे हमें रेलिवेंट बनाने के लिए इकोनॉमी के सिवा मुझे कोई मार्ग दिखता नहीं। लेकिन हमने जो मार्ग चुना है, उस मार्ग के चलते हमने 4 करोड़ पेड़ लगाए हैं। और मैं मानता हूं दैट द इजीएस्ट, चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड ऑफ फाइटिंग क्लाइमेट क्राइसिस इज मास प्लांटेशन। तो जिस इलाके में मैं काम करता हूं, वहां पे पहले 8 साल में 6 सूखे पड़े थे। आज लास्ट 4 साल से जब करोड़ों पेड़ लगे हैं, वो चीरा पूंजी जैसा बारिश गिर रहा है। अब वो ग्रीनरी मानसून अट्रैक्ट कर रही है, मानसून से ग्रीनरी बढ़ रही है, उसका क्रेडिट तो नहीं लूंगा, लेकिन ये एक, इट्स नॉट अ गुड एनालॉजी, लेकिन एक पत्थर से काफी कुछ पक्षी मर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा ये है कि हम एनवायरनमेंट को काफी हेल्प कर पा रहे हैं। और अगर फल के पेड़ लगाने इतनी संख्या में, तो पानी के ऊपर काम करे बिना कुछ होगा नहीं। तो पानी के ऊपर काम होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर काम होता है, लेकिन सबसे जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो इस देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ाएं, गरीब से गरीब किसान को। और हम सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के साथ काम करते हैं। तो गरीब से गरीब किसान इन अ लार्ज नंबर, स्केल, इम्पैक्ट के साथ कैसे इस देश में हो पाए, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। आप सबने मेरे को शांति से सुना, उसके लिए आई जस्ट वांटेड टू थैंक ऑल ऑफ यू। आपको कोई सवाल है तो आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। बहुत सही कहा मयंक सर आपने। आप बिल्कुल रेस्टलेस है, वो आपका पूरा जो कैरियर ही दिखाई देता है उसमें। आप एक्सपेरिमेंट भी लगातार करते रहे। नाना जी से भी मैं आपको जोड़ने का थोड़ा सा लगता है कि जिस तरह से आप में रेस्टलेसनेस है, ऐसी नानाजी देशमुख उनमें भी थी। तो आपने पॉलिटिकल पीक पे जाके उन्होंने राजनीति को छोड़ा और फिर एक सोशल वर्कर के रूप में उन्होंने इतना बड़ा काम खड़ा किया। और वही चीज है जो आप जैसे इसको कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल तराई के एरियाज में जाके वहां पर पानी के लिए काम किया, बेम्बू बोरिंग के थ्रू उस समय वहां पर। तो आपकी रेस्टलेसनेस और बढ़े, हम लोग यही चाहते हैं। कोई प्रश्न अगर पूछना चाहे मयंक गांधी जी से, और सर एक बार चित्रकूट आइएगा आप। हाँ जब उसमें क्या हुआ ना, ये जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट वर्स्ट एरिया में किया ना, वो हाईली सक्सेसफुल हुआ। एक बार सक्सेसफुल हो गया तो रेस्टलेसनेस बढ़ गई। अरे यार फॉर्मूला हाथ में आ गया देश बदलने का, अब कैसे बदला जाए। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे एक मैराथन रेस में लास्ट के 300 मीटर हम लोग फास्ट दौड़ते हैं, तो मेरे 300 मीटर शुरू हो गए हैं, अब कितना और फास्ट दौड़ सकते हैं वो कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग प्रे करेंगे कि आप बहुत तेजी से दौड़ें और रेस्टलेसनेस आपकी बढ़ती जाए। अब मैं उमाशंकर जी हैं, उमाशंकर भैया जो एक मिनट मयंक जी, जो आप कहा था, आपके साथ हम बिल्कुल सहमत हूँ। आई एम आल्सो वेरी रेस्टलेस सोल। जो पर तो हम लोग जो
जो मेरा जो जोश थे, नाना जी ने उसको थोड़ा डायरेक्शन दिया था और उसने जो हमको समझा दिया। एक्चुअली हम मेरा एक्सपीरियंस भी बताते हैं। आई वाज अ वेरी यू नो आई केम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। जैसा आपने कहा कि पहला गांव कभी देखा नहीं था, हम भी नाना जी ने एक गांव को लेकर गया था। और जो मेरा एक रात का हम खाना खाते थे, वो जो परिवार मैंने देखा वो गांव में, वो एक साल में नहीं कमाते थे। वो फर्क था। तो यू नो व्हेन यू आर यंग एंड आइडियलिस्टिक, वो आपका दिमाग में बहुत कुछ चलते थे। तो नाना जी ने बोला था कि हम जो एक एनजीओ है, हम एक इंडिविजुअल है, हम एज अ इंडिविजुअल वी कैन नॉट चेंज 650 गांव। हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा चीज बनाओ जो दूसरी लोग उससे सीख करके उसकी गांव में वो करवा दे। तो हम जो हमको सिखाया नाना जी ने कि एक मॉडल ऐसा बना जो कि आपका जो इंटरवेंशन आप करते हैं वो उसका 3 चीज होना चाहिए। एक है, इट शुड बी मेजरेबल तो पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। 2, इट शुड बी रेप्लिकेबल so people can replicate it, and 3, it should be sustainable कि वो एक ही दिन के लिए नहीं करेंगे, वो सालों के लिए उसके साथ कुछ ले सकते हैं। तो ये फोर्थ एक ऐड करता हूँ जी, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जिसमें देश भर से लोग आके ट्रेन होके जा सकते हैं, तभी रेप्लिकेट होगा। ये जी, ऐसा मॉडल खाली देख के या वीडियो देख के रेप्लिकेट हो सकता है। वो तो चित्रकूट में हम वही करते हैं सर, सबको बुलाते हैं, सबको वहां दिखाते हैं और हम लोग कितना भी प्रेरणा देना सबको दे देते हैं। तो ये जो मॉडल है, प्लीज आप हम लोग के साथ आना और हम लोग जोड़ के करेंगे। अभी उमा शंकर जी अपना जो इस बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं, वो पानी पर बहुत काम किया है, वाटर कंजर्वेशन पर, और साथ साथ में उसने मेड पर पेड जो प्रोग्राम है वो बहुत हाई स्केल में किया। भैया आप थोड़ा बता दीजिए आप कैसा करते हैं और क्या करते हैं। नहीं, ये अभी जैसे बात नाना जी की चल रही थी, ये भी नाना जी से प्रेरित व्यक्ति हैं, बहुत पुराने समय से जुड़े। और एक व्यक्ति क्या असर डाल सकता है जीवन में। मयंक गांधी जी महाराष्ट्र में कर रहे हैं, उमा शंकर जी एक उदाहरण है दूसरों के लिए कि एक व्यक्ति भी कुछ ऐसा कर सकता है कि जो पूरे देश में जा सकता है। तो उमा शंकर जी हर खेत में मेड़ और हर मेड़ पर पेड़, वो कॉन्सेप्ट, साथ में हर खेत में पानी का संचयन, तो उस विषय पे आपका काम है। पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ भैया, बसंत पंडित जी, अभय भैया जी, और सभी जो आज का ये बड़ा महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो वार्ता आपने रखी है और मुझे अवसर दिया है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। पूज्य नाना जी के आशीर्वाद से हम सब लोगों ने यहाँ सीखा है, वो हम सबके प्रेरणा है और हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं। जैसा कि आज का विषय है, पूरे भारत में लगभग 10,360 नदियां हैं और उन नदियों में 6,000 से अधिक बांध बने हुए हैं, लेकिन 75% नदियों में लगभग पानी नहीं है, बांध भी खाली है। पूज्य नाना जी के आशीर्वाद से ये बात मैं कहूंगा कि मंदाकिनी नदी को DRI का जहां तक अपना प्रकल्प है, दीनदयाल का जो अपना जो सियाराम कुटी है, उसके नीचे जाइए तो बहुत गंदगी है उत्तर प्रदेश के इलाके में। दिल्ली में यमुना की स्थिति ठीक नहीं है, कानपुर में गंगा जी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो देश की नदियां लगभग प्रदूषण पे आ गई हैं और उनको सुधारने के लिए भी बड़े स्तर पर प्रयास स्वैच्छिक स्तर पे भी हो रहे हैं, सरकार के स्तर पे हो रहे हैं और व्यक्तिगत स्तर पे भी हो रहे हैं। हमने एक मंत्र लिया था, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। ये 94 के आसपास बांदा इस बुंदेलखंड में एक बाढ़ आई थी। पूज्य नाना जी ने का जो सपना रहा है अंतिम व्यक्ति के लिए, अंतिम जन के लिए और वंचित व्यक्ति के लिए, तो बहुत सारी बाढ़ के बाद दूसरे वर्ष 95 में सूखा पड़ गया और मालगाड़ी से बांदा से पानी 1 मार्च से मानिकपुर जाता था। पूज्य नाना जी का से जब हम लोग सीखते थे तो उन्होंने कहा ये पानी रोका कैसे जाए और व्यक्तिगत स्तर पे कैसे रोका जाए। तो हम सब लोगों ने मिलके किसानों के साथ एक पुरानी जो पुरखों के जल जोड़ने की जो विधि थी
वो कितनी बड़ी पुरखों की विधि थी, कोई दुनिया का आज तक वैज्ञानिक बादल नहीं बना पाता, बादल ला नहीं पाता, बादल को ट्रांसफर नहीं कर सकता, अगर पानी के पेड़ नहीं बना सकता दुनिया कोई वैज्ञानिक। लेकिन हमारे जो ऋषि थे, हमारी जो सनातन व्यवस्था थी, सनातन जानकार थे, अगर हम उदाहरण लें कालिदास जी का, तो मेघ को बुलाना जानते थे, दुनिया का वैज्ञानिक नहीं जानता। महाराज भोज जो तालाब के बनाने के विशेषज्ञ थे, दुनिया की पहली आर्टिजन रिवर, जमीन से निकलने वाली नदी माता अनसुईया के तप से मंदाकिनी चित्रकूट में निकली। और दुनिया, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन वन के हिसाब से, फॉरेस्ट के हिसाब से केवल चित्रकूट में 35% फॉरेस्ट एरिया है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। जहां की पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास है, 30 और 35 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है। लेकिन फॉरेस्ट के मामले में मयंक गांधी साहब ने, अभी मैं सुन रहा था, इतना बड़ा अद्भुत 4 करोड़ पेड़ लगा के जो उन्होंने काम किया। मैं भी महाराष्ट्र में काफी घूमा, और महाराष्ट्र का दुर्भाग्य तो नहीं कह सकता मैं, एक बात जरूर है, बॉम्बे गया था मैं अभी, तो वहां मीठी नदी गायब है, मीठी नदी है ही नहीं है, लगभग कब्जे में है। तो लेकिन पूज्य नाना जी के आशीर्वाद से सब लोग जुड़े, किसान जुड़े, व्यक्तिगत, जैसे कि आप सबने बताया, अमिताभ भैया बता रहे थे कि हमने कोई एनजीओ नहीं बनाई, संस्था नहीं बनाई, कार्यालय नहीं बनाया, ऑफिस नहीं बनाया। 33 साल में पूज्य नाना जी ने कहा था कि कोई उनके आशीर्वाद से कोई अनुदान नहीं लिया, और ये खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ का जो नारा पूरे देश में गया, पूरे भारत में गया। और अभी उत्तर प्रदेश में जो जल सप्ताह मनाया जाता है, उसका जो की उदाहरण था अखबारों में और तमाम जगह, हर खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में, और देश में पहले 470 गांव में मॉडल लगाया, फिर 1 लाख गांव में मॉडल लगा, जखनी मॉडल, फिर जलग्राम बने, अब हम आजकल बना रहे हैं वन ग्राम। तो जो जलग्राम के बाद वन ग्राम, लेकिन इसमें भी पूरे DRI का पूरा सपोर्ट साथ मेरे साथ रहता है, अभय भैया का सपोर्ट रहता है, बसंत पंडित जी का है, अमिताभ जी का है, पूरी टीम का मुझे आशीर्वाद मिलता है। और आज मैं सुनने के लिए अब आया था, और सुनना है मुझे, बड़ों से सुनने के लिए मिलता है, बड़ों से समझने के लिए मिलता है। लेकिन हम काम करें, हजारों किसान, लाखों किसान आज मेड़बंदी कर रहे हैं। और बांदा का वाटर लेवल, जिस बांदा से पूज्य नाना जी अब आए थे तो मालगाड़ी में पानी जाता था, चित्रकूट के मानिकपुर, और आज उसी चित्रकूट के गनीमा ने, जो हमको कृषि विज्ञान केंद्र ने उदाहरण दिया सबके सामने, वहीं राजापुर से सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 15 लाख कुंटल धान सरकार ने खरीदा है। बासमती चित्रकूट का अंतिम गांव है मुरका के किसान भी बासमती पैदा कर रहे हैं। बुंदेलखंड के झांसी में बासमती धान के चावल बनाने वाली 100 करोड़ की मशीनें लग रही हैं। मैं नहीं कहता कि धान में पानी नहीं लगता, लेकिन 30-30 लाख कुंटल पर वर्ष धान नरेला मंडी जा रहा है, जो एशिया की सबसे बड़ी चावल मंडी है, यहाँ से धान जा रहा है। और सरकार ने 1000 करोड़ का धान खरीदा पिछले 5 सालों में किसान का, केवल बांदा बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का हिस्सा अलग है। तो पानी आया, पूज्य नाना जी आए, और उनके हम सब लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता तैयार हुए गांव गांव। हम लोग पानी की पाठशाला, किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं पानी बचाने के लिए, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, जंगल का पानी जंगल में, नदी का पानी नदी में। और लगातार हम सीखते हैं, जब भी कोई कार्यशाला होती है DRI के बीच में हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं। लेकिन पुरखों की जो विधियां थी, मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन है, और जलवायु परिवर्तन को व्यवस्थित रखने के लिए पेड़ लगाना और पानी बचाना। हमारे देश में लगभग 18,000 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है। 18,000 करोड़ हेक्टेयर में अगर खेती होती है तो उसके लिए पानी चाहिए, और पानी पाने के 2 ही रास्ते हैं, तो भूजल या वर्षा जल। वर्षा के दिन 120 से घट के 41 हो गए हैं। अब ऐसे में क्या करें हम? जो पानी जहां गिर रहा है, पानी के लिए एक एक बूंद, सब कुछ बना सकते हैं हम, सब कुछ पहुंच सकते हैं हम, लेकिन पानी नहीं बना सकते, और बगैर पानी के पेड़ नहीं हो सकता। जो पुराने पेड़ हैं, पूज्य नाना जी कहते थे, बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, आम है, इमली है, जामुन है, ये 5 किलोमीटर ऊपर से पानी लाते थे। अभी एक साथी कह रहे थे, नदी में नहाने की बात कर रहे थे। हम लोग छोटे थे तो 100 ग्राम पानी में नहाते थे। नाना जी कहते थे 100 ग्राम पानी लगेगा नहाने में ना, तालाब में डूब के आइए, कोई पानी नहीं लगता था। नदी में डूब के आइए,
कोई पानी नहीं लगता था, बढ़िया स्नान होते थे। बसंत पंडित जी तो बहुत सीनियर है, हम लोग इनसे सीखते हैं। अबे भैया के साथ लगातार हम लोग संवाद करते हैं, गांव में जाते हैं, तो आज भी गांव में पुरानी पद्धतियां हैं। हमारे पुरखे कौन सी तकनीक अपनाते थे कि माउंट आबू के पहाड़ के ऊपर भी पानी लबालब भरा हुआ है, कालिंजर के ऊपर पानी भरा हुआ है, किले के ऊपर पानी है। आज हम जो कोई भी तालाब फूटने के बाद प्रलय नहीं लाता, कोई भी कुआं भरने के बाद फूटने के बाद प्रलय नहीं लाता। आज से 100 साल पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक नाटक था उनका, बांध विनाशकारी है। जो हमारे पुराने पुरखे थे मोहन जोदड़ो हड़प्पा के बाद भी हर घर में कुएं पाए गए, हर घर में तालाब पाए गए। आज गांव के तालाब कुएं में पानी नहीं है। हैंडपंप जो हरित क्रांति के नाम पर जो हमने धरती माता के पेट में छेद किए हैं, वाटर लेवल नीचे गया। उन वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा था कि पानी हम ले तो रहे हैं, उसमें डालें कैसे। तो ये जो सब किसान सोचेंगे, समाज सोचेगी, राज्य सोचेगी, तो हम पानीदारी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और पानी पहले है, पानी के वजह से, पानी के लिए दीनदयाल शोध संस्थान ने अद्भुत काम किया। जो भी देखना चाहे वो देख सकता है, गनीवा में देख सकते हैं, इसके बाद मछुआ जो हमारा है वहां भी देख सकते हैं। और पूज्य नाना जी का जो सपना है वो हरा भरा चित्रकूट हमारा देखने के लिए, इसलिए हम बार बार ये बात करते हैं कि चित्रकूट में जो फॉरेस्ट एरिया है वो 35% है। 15% फॉरेस्ट एरिया चाहिए मानव के लिए, पेड़ चाहिए। तो मैं ज्यादा ना कह करके, आज आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं सुन रहा हूं, और हमें बहुत काम करना है। बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, ये नहीं कह रहे हैं हम, नई तकनीक भी जरूरी है, नई और पुरानी, ड्रिप इरिगेशन भी जरूरी है, बूंद बूंद पानी भी का इस्तेमाल हो। लेकिन जो पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके हैं, वो कौन सी भौगोलिक स्थिति के अनुसार कुएं बनाते थे, कौन सी स्थिति के साथ तालाब बनाते थे, कैसी वो झील का निर्माण करते थे, इन सब पर भी हमें ध्यान देना होगा और पेड़ लगाना होगा, पानी बचाना होगा। देश के हर किसान को, देश का सबसे बड़ा रोजगार किसान देता है, और किसान अपने लिए नहीं चावल पैदा कर रहा है, न गेहूं पैदा कर रहा है, किसान समाज के लिए कर रहा है। इसलिए उसमें आरोप भी नहीं लगा सकते कि पानी का यूजर किसान है। हमारे सदियों से भात खाते थे, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, इसलिए नहीं कह सकते धान में पानी लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर पंडित जी को सुनेंगे, अभय भैया सुन रहे हैं, और हमारे समस्त साथी सुन रहे हैं। मैं बड़े बड़ों का विचार सुनता हूं, बस ऐसे ही चलता रहता हूं। एक छोटा सा काम है, बड़ा काम नहीं है। बस आप सबका आशीर्वाद है कि व्यक्तिगत तौर पे ये काम जलग्राम बनाया तो 1050 जलग्राम देश में बन गए, और अब हम वनग्राम की तरफ, अभी हम अभय भैया से और बसंत पंडित जी से, सब लोगों से परामर्श लेंगे, वनग्राम बनाए जाएं। तो इसकी शुरुआत भी हम लोग कहीं से करेंगे, और आप सबसे सीखने के लिए मुझे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को। सबका आशीर्वाद मिले और पानीदार बने, और पुरखों की जो विधियां हैं पानी की, जल जोड़ने की, पूज्य नाना जी का सपना साकार हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी हम्बलनेस ही है जो आप कह रहे हैं, बहुत छोटा काम कर रहे हैं। और आज की ये जो हम लोगों की वेबिनार या एक बैठक कुल मिला के रही, ये अभी की तकनीकी का एक अच्छा प्रयोग है। तो डाइवर्स फील्ड के लोगों को हमें सुनने को मिला। अब इसके कंक्लूजन के लिए मैं अब जो अपने भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अमिताभ, एक मिनट जी, मैं बसंत भैया से आग्रह करूंगा, इस पूरे को जो कन्वीनर भी हैं और एक पूरे इसको सोच को लेके आगे बढ़े हैं, और हम लोगों को सबको जोड़ना है इस चीज में। तो वो एक प्रश्न है अभी डॉक्टर सतीश कुमार जी का, तिवारी जी का। तो ये पूछ रहे हैं, शायद एग्रीकल्चर सिलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन इफ प्रेफरेंस इज गिवन टू पुअर फार्मर्स फील्ड और रिच लैंडलॉर्ड फील्ड। ये शायद निकरा के संबंध में पूछ रहे थे। मुझे बताना है कि ये मार्जिनल फार्मर्स यानी फार्मर्स फील्ड उसको ही लेकर कर रहे हैं। और जैसे नेगी जी ने बताया था कि वो फार्मर्स की भी नॉलेज को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, यानी कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ही सारा ज्ञान नहीं है। जो परंपरागत रूप से कृषि करने वाले फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके पास भी ज्ञान की एक बहुत बड़ी थाती है, और उसको हम जब एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। तो सर, इनका ये हो गया। अब वसंत भैया कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपना करेंगे और फिर अपन इस बैठक को। बिफोर कंक्लूजन के पहले हम एक बात पर बताना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यक्ति है अमेरिका में, उसने कुछ कई पैसा बनाया और उसको सोच रहा था कि हम कुछ करेंगे इंडिया में, और उसको लगा था कि इंडियंस का जो फ्रूट कंजम्पशन है
वो बहुत कम है। हम लोग एज अ नेशन ज्यादा फल खाते नहीं है, कोई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी खाता है, बट गांव में ज्यादा फ्रूट खाने का आदत नहीं होता है। तो उसने एक एनजीओ चालू किया था और वो सिंगल हैंडेडली एक प्रोग्राम फंड कर रहा है कॉल्ड फ्रूटफुल इंडिया, और उसमें वो हर गांव में फ्रूट ट्रीज का सैपलिंग दे रहे हैं, और वो कम्युनिटी लैंड्स पर वो प्लांट कर रहे हैं और इंडिविजुअल फार्मर्स को भी देते हैं कि वो उसकी जमीन पर करवाने। तो हम दीनदयाल शोध संस्थान फ्रूटफुल इंडिया का नाम से चलते हैं। डॉक्टर PN माथुर है जो बायोवर्सिटी इंडिया का पुराना हेड थे, वो ये प्रोग्राम को स्पीयर हेड कर रहे हैं, और दीनदयाल शोध संस्थान उसका एक पार्टनर है। एंड it does two things. One, we grow more trees. Two, it gives nutrition. I have now asked Uma Shankar ji that now कभी वो हर पेड़ पर मेड का काम करेंगे, तो वो अभी जो पेड़ लगा देंगे वो फ्रूट ट्रीज ही लगा देंगे। तो you know Mayank ji is a great inspiration for this fruit tree plantation, and we are going to also take it up on a big scale. When we'll plant fruit trees because it's very, very nutritious, and it ticks all the boxes. First of all, I'd like to thank everyone for attending this webinar. We had some true insights as to what we can do. Nick is a very dear and old friend who he's been not only working in Thailand, he's also worked a lot in India. He used to spend months in Manali trying to keep or clean the plastic in Himachal, also in the Mithi River in Bombay. But Nick's insights into this whole area is very, very deep, and he has a lot of knowledge on this topic, and we hope that he would partner with us in the World SDG Forum to create more awareness and more interventions that can be replicated by NGOs across the world. The whole idea of this series of webinars that we are doing is that the language of development, I keep saying, changes as we move along, but the thought doesn't change. What we do in the institute was written thousands of years ago as Bharatiya Sanskriti. It then the Pandit Deendayal Upadhyaya then turned it into integral humanism. Today, the language of development has changed again, and it's called Sustainable Development Goals. The outcomes and the process is the same. The language has changed. Today, the problem is that with the development process, the actual people on the ground no longer have a voice in this whole movement. And the movement is taken over by armchair philosophers and economists who give us more statistics and tell us how much money has been spent and how much money needs to be spent, and give us percentages of what needs to be done. This is not what we require. What we require is people on the ground who actually are conducting some work, who have some value that they can add to the process of achieving goals like the eradication of poverty through simple steps that are easy to replicate. So in the last seminar, we heard Dr. Suresh, who's with us, and Ratnamala Kapoor, who was also with us, speak about what they did for healthcare in their fields with very, very replicable and easy to implement interventions. The same today, what we have heard from all our 4 speakers gives us a roadmap as to how we can replicate and accelerate the achievement of the SDGs. The SDGs are very simple. It's how to make the last man's life better. The Antam Vyakti, the one who's in poverty, the one who is suffering, the one who doesn't have a house. And with this, how can we also save the planet? When we talk about Vasudeva Kutumba, we talk not only about human beings, we also talk about animals, the environment, the forest, the planet. So how do we preserve all this and sustain this planet? As one of the mentors of this whole SDG forum, Eric Solem says, there is no planet B. We are here to stay, and we have no choice but to look after it.
I'd like to thank everyone for their time to come here. We are planning to. This is a monthly affair that we are trying to do to keep the conversation going. We do it on the last Saturday of every month. We had actually chosen 11 o'clock, but I think with discussions with all our team members, we've decided to shift it from 4 to 6 o'clock in the evening, so that people from Europe can also participate. For them, 11 o'clock is 6 in the morning, और वो उठकर बिना कॉफी ज्वाइन करना बहुत मुश्किल काम होता है. तो हम उसको यहाँ आगे से ये 4 से 6 कर देंगे. वो सबने आपका टाइम दिया है इसमें ज्वाइन करने के लिए, सुनने के लिए और कुछ सीखने के लिए, और होपफुली आप उसको रेप्लिकेट करेंगे घरों में. तो फॉर दैट बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. कल्याण मंत्र के साथ बैठक को समाप्त करेंगे. सर्वे भवन्तु सुखिनः. मैं बोलूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद. नमस्कार. थैंक यू एवरीवन.